امریکی صدر کا پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور بھارت نے دانشمندی اور ہمت سے کام لیا۔ بڑھتی کشیدگی بہت سے لوگوں کی موت اور تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ امریکہ نے دونوں ملکوں کو اس تاریخی فیصلے تک پہنچنے میں مدد کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ پاکستان کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کی جانب ایک قدم۔ کشمیر ایک دیرینہ مسئلہ ہے جس کے جنوبی ایشیا اور دنیا کے امن و سلامتی کے لیے سنگین مضمرات ہیں۔ جموں و کشمیر کا منصفانہ اور دیرپا تصفیہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق بشمول ان کے ناقابل تنسیق حق خود ارادت کے حصول کو یقینی بنانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے ایک بار پھر بے نقاب۔ 6 اور 7 مئی کی رات طویل مارکے میں پاکستان کے شاہینوں نے 3 رافیل سمیت 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت نے جھوٹ کا سہارا لیا، طیارے گرنے کی خبر سے انکار کیا۔ بھارتی میڈیا نے طیارے گرنے کی خبروں کی تصدیق کی جو بعد میں ہٹوا دی۔ 9 مئی کو ڈی جی ISPR نے نیوز کانفرنس میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا، رافیل گرانے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے۔ پاک فضائیہ نے دفاعی کارروائیاں پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کرتے ہوئے سر انجام دیں۔ when Pakistan will strike تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. The whole world will come to know. پاکستان کی ازلی دشمن بھارت کے خلاف عظیم اور تاریخی فتح۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم پرجوش، مٹھائیاں تقسیم، پاک فوج سے اظہار تشکر، یکجہتی کے لیے ریلیاں، اجتماعی دعا اور نوافل کا اہتمام۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر ملک بھر میں جشن، مٹھائیاں تقسیم۔ بھارتی جارحیت کا تاریخی اور منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین، اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ لکی مروت، باجوڑ، چترال، پشاور کینٹ، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، فتح کی ریلیاں۔ محمد، نوشہرہ اور قلعہ بالا حصار میں بھی عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد ملک بھر میں جشن کا سما۔ شہری سڑکوں پر نکل آئے، بھارت کا غرور خاک میں ملانے پر ملک کے ہر گلی کوچے میں جشن اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ فضا پاک فوج زندہ باد کے فلک شکاف نعروں سے گونج اٹھی۔ آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہریوں کا جوش و خروش چیز میں۔ یوم تشکر پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات، شہریوں کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم، ایک دوسرے کو عظیم فتح کی مبارکباد۔ دشمن کی کسی جارحیت کے خلاف مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ یوم تشکر اس بات کا واضح پیغام ہے کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف پاکستانی جوابی کارروائی میں کامیابی کا جشن۔ ورسک روڈ پشاور سے قلعہ بالا حصار تک ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں مختلف مکاتب فکر اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی کے شرکاء کا پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے۔ شرکاء کا دفاع وطن میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان کی غیور قوم کو مبارکباد۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے۔ قوم اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سیسا بلائے دیوار کی مانند متحد ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے خواہاں، پاکستان کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ حالیہ دنوں میں
दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी जिसका हमारी दलेर और बहादुर फौज ने पेशावराना अंदाज में मुअस्सर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी और पूरी कौम की जानिब से शुक्रिया। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान और तमाम जरी जवानों को खराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। बहादुर जवानों का मुकाबला कौन कर सकता है? दुश्मन को उसकी जुबान में ही जवाब देना जरूरी था। मोहम्मद शहबाज शरीफ। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारयत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की राम नहाद फौजी कुव्वत को सख्त नुकसान पहुंचाया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शुहदा के लिए दुआ भी करनी चाहिए। आर्मी चीफ, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान समेत तमाम अफवाज को मुबारकबाद, जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। सदर आसिफ अली जरदारी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। हम तरजीह है, अपना दिफा करना भी बखूबी जानते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और मुसल्लह अफवाज की सताइश। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम अज़ाइम को खाक पे मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो भुला नहीं पाएगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के तमाम अज़ाइम और ख्वाब चकनाचूर हो गए। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी की नई तारीख रकम की है। भारत पाकिस्तान के जवाबी वार को सदियों तक याद रखेगा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज ने अपनी काबिलियत, जज्बे, पेशावराना महारत से रवायती जंग में बालादस्ते का लोहा मनवाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत तमाम सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को कौम का खुसूसी सलाम। वज़ीर ममलकत बिलाल हसन कियानी की यौम तशक्कुर पर कौम और क़यादत को मुबारकबाद। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पाक फ़ज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम मार्का हक़ व बातिल में सुरखरू ठहरे हैं। पूरी कौम को फतह मुबारक। पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाओं पर अपनी बरतरी साबित कर दी। बर वक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन चारों शाने चित हो गया। पाक फ़ौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। भारत को जंग में एक बार फिर धूल चटाने पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का इज़हार तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पूरी दुनिया में धाक बिठा दी। पाकिस्तानी फौज की काबिलियत और फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ीरक और बुर्दबार क़यादत और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी और दलेरी को सलाम पेश करते हैं। इस फतेह ने साबित कर दिया कि ये कौम हर मुश्किल से नबरदाश्त होने की भरपूर सलाहियत रखती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ। पूरी दुनिया पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों की मोतरफ। आलमी ताउन से जंगबंदी हुई और खित्ता एक बहरान से बच गया। पाकिस्तान हमेशा से अमन, मुज़ाकरात और खित्ते में इस्तेहकाम का दाई रहा है। हमारी अनपसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अपनी खुद मुख्तारी, कौमी वकार और सरजमीन के एक एक इंच के दिफा के लिए हम वक्त तैयार और पूरी तरह बाखबर हैं। हम मुत्तहिद हैं, चौकन्ना हैं और अपने दिफा के लिए हमेशा और हर लम्हा पुरअज़्म हैं। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी। पाकिस्तान कभी जंग नहीं चाहता, लेकिन जब जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन को भरपूर जवाब भी मिला। पाक अफवाज ने साबित कर दिया कि हमारे जवान
मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। बलोचिस्तान दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर सिपा सालार, सर्विसेज चीफ और तमाम जवानों का शुक्रगुजार है। सूबे के अवाम की जानिब से पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी की एक और दास्तान रकम करते हुए दुश्मन को सबक सिखाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का गुरूर खाक पे मिल गया। मोदी का अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। शाहीनों ने दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए। मोदी ने ट्रंप को दरख्वास्त की कि हमें बचा लो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी पर सदर ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। सदर ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया ने दो जोहरी मुल्कों के दरमियान जंगबंदी में भरपूर किरदार अदा किया। तमाम दोस्त मुल्कों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जंगबंदी में अपना अपना किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का BBC को इंटरव्यू। भारत ने बुज़दिलाना इक़दाम करते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। मक्कार दुश्मन ने रात की तारीकी में हमारी बहादुर कौम को ललकारा। बुज़दिल दुश्मन ने निहत्ते शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बनाया। भारत ने तमाम इंसानी कवानीन और जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू का ABA डिप्लोमेटिक को खुसूसी इंटरव्यू। वतन की हिफाजत का आज़म लेकर हर एक अपने महाज पर। राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी J-17 थंडर, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दलेर पायलट्स और बर्क़ रफ्तार तैयारों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस तबाह कर डाला। दुनिया पाक फ़ज़ाइया के जांबाजों की बहादुरी, महारत और जज्बे की मुअतरफ़। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं ऐसी सफ़े बांधकर गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। पाकिस्तान ने भारतीय बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब दिया। चंद घंटे में भारतीय गुरूर जमीन बोस, सीसा पिलाई दीवार के सामने दुश्मन बेबस। पाक फिजाइया ने कारी ज़रबे लगाई। शहरियों और मसाजिद पर हमले में मुलव्विस तमाम भारतीय बेसिस को शाहीनों ने हदफ बनाया। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अल्लाह अकबर के नारों के साथ फतेह-1 मिसाइल ने भारतीय दिफाई निज़ाम जमीन बोस कर दिया। दुश्मन के मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय दिफाई हिसार चकनाचूर। फकलियां सेक्टर में भारतीय पोस्ट तबाह। ब्यास में भरामूस स्टोरेज साइट, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप, उड़ी सप्लाई डिपो उड़ा दिया। कला ढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगल 1 पोस्ट और न्यू कॉम्प्लेक्स भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी इलाका अमन इस्तेहकाम के अज़्म के आकाज़। फिलिमोन यांग का फ्रीकैन पर इख्तलाफात दूर करने, देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें और बातचीत जारी रखने पर जोर। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सरकारी दौरे पर रूस पहुंच गए। रूस में क़याम के दौरान आला सतह मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़, ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और रूस के पार्लिमानी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। वफूद के तबादलों में तेज़ी आना एक मुस्बत पेशरफ्त है। चेयरमैन सेनेट का पाकिस्तान टेलीविजन को रूस के दौरे से मुतालिक इंटरव्यू। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रई मशीनरी की तेज़ तर तकसीम और बलोचिस्तान के 36 अजला में सोलर लाइटिंग यूनिट्स की फौरी तनसीब पर ब्रीफिंग। चीन की जानिब से 12 अरब रुपए के ज़रई मशीनरी की फ्राहमी। 10 दिन के अंदर मुतल्लिका महकमे मशीनरी की तकसीम यकीनी बनाएं।
वजीर मनसूबा बंदी की तमाम सूबों को हिदायत। जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का तामीराती काम जारी, मंसूबे का इफ्तिताह 22 मई को होगा। वजीर दाखिला का जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार, चेयरमैन CDA की मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। रूस की यूक्रेन को तनाज़े के हल के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत, पायदार अमन के लिए ज़रूरी है बातचीत गैर मशरूत की जाए। 15 मई को इस्तांबुल में मुज़ाकरात की सहूलत देने के लिए तुर्क सदर से खुद बात करूंगा। सदर व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू, अमरीकी सदर की जानिब से व्लादिमीर पुतिन के बयान का खैर मकदम, मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रूस और यूक्रेन से राब्ते में रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली वार जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। दीरुल बला पर फ़ज़ाई हमले में 4, गजा शहर की खैमा बस्ती पर बमबारी में एक ही ख़ानदान के 5, जबकि गजा शहर के इलाके शेख रिजवान पर ड्रोन हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की मुसलसल 3 माह से जारी नाकाबंदी से फ़लस्तीनी मर रहे हैं।